A very good morning, सबको जय मसीह की. As we start this day and step up success, this morning I'd like to share few points about the kind of people that exist in churches, society and in our community. Well, there is one category of people who have been so faithful in following Jesus, been very religious, but have never established a contact or gained the knowledge of the God they are worshipping, they are praying to. It's just a ritual that they continue to follow. And perhaps this was the reason why at Caesarea Philippi, Jesus with his 12 disciples had to put this question before them: who do people say that I am, and who do people say and who do you say that I am? You must know me personally. And that was his objective, perhaps, of asking whether in following him, being with him in his company, did they actually recognize the Messiah who had the saving power to give them salvation, and the ministry that was ahead of them after he would be crucified, the way he had to suffer and pay the price for their sins, and if only they believed, they would gain eternal life. Now that is the other category that I would like to talk about. Now there is another category of people who have personally known him, who have been faithful to him, but then the tragedy was that they never came to the forefront or served at the altar in any church or entered the ministry, nor were they ever baptized, but they had deep knowledge about who the Son of God was. So I'd call them unbaptized Christians. The third category that I would like to talk about is a rare species. Now this is a kind that I would say before they were born, God had put a stamp on them. They would grow up in an environment, in a situation where even though they try to run away from God's ministry, they could not, and I being one of them. And I know that how the Holy Spirit engulfs such people, addresses them individually and takes them into their fold, gives them, of course, the liberty to choose. Let's not forget the words of Jesus: you did not choose me, I chose you and appointed you, that you bear much fruit, the kind of fruit that abides. And it's not these individuals who decide the kind of fruit they would bear. It's the task, it's the assignment given by the one who calls them. So this morning, as we gear up to start this day and step up success, let's try to identify, after introspecting, which category I belong to. आज जिन लोगों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हम इस दिन की शुरुआत करते हैं और अपनी इस सफलता के प्रति जो जीवन हमें परमेश्वर से मिला है उसके प्रति कदम उठाने जाते हैं, मैं आज 3 तरह के लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं. जो पहली कैटेगरी है और वो ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने बड़ा रिचुअलिस्टिकली, यानी कि जितने हमारी आराधना के जितने भी ज़रूरी अंश हैं उनको तो बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने उसको अपनाया है, आराधना करी है, दुआ करी है, बंदगी करी है, वचन पढ़ा है. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कभी वो मसीहा को, परमेश्वर को पहचान ही नहीं पाए कि आखिरकार है कौन. उनकी ईमानदारी को सलाम है, लेकिन आखिरकार जो पॉइंट था
वो शायद मिस कर गए। और इसी वजह से लगता है कि प्रभु यीशु ने सिजरिया फिलिप्पी में अपने चेले जो उसके साथ साथ चलते थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखते थे, उनको 2 प्रश्न पूछे और कहने लगा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहता हूँ। प्रभु ये आज मेरे और आपसे भी शायद जानना चाहता है। और इसलिए ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं कि जिन्होंने पहचान लिया पतरस की तरह कि तू मसीहा है, और प्रभु ने जो उसको जवाब दिया था वो ये था कि मैं इसी नींव पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन जहाँ दुख की बात आई, परेशानी की बात आई, वहाँ पर जा कर के सारी समस्या आरंभ हुई। और इसलिए मुझे और आपको आज ये दूसरी कैटेगरी को बारे में जानना अवश्य है, और वो ये है कि ये लोग वो हैं दूसरी कैटेगरी के जिन्होंने तो पहचान लिया प्रभु को, पतरस की मानंद पहचान लिया, लेकिन वो जो लोग हैं अपने कभी भी इस समझ होने के बावजूद, प्रभु यीशु मसीहा को पहचानने के बावजूद कभी सामने उसकी सेवा में नहीं आए, कभी बपतिस्मा नहीं लिया, ये जानते हैं कि उद्धार करता है। और इसलिए मैं उनको कहता हूँ, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं अनबैप्टाइज्ड या सीक्रेट क्रिश्चियंस, कि ये वो मसीहा हैं, मसीह लोग हैं जिन्होंने प्रभु को बारे में जान लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो रस्म थी इम्पॉर्टेंट कि एक फॉर्मली आते, वो उन्होंने नहीं किया। कभी गिरजों के ऑल्टर पे सर्व नहीं किया। जैसे मोबाइल तो ले लिया लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ या प्लग नहीं हुआ तो वो तो फिर एक खिलौना रह जाता है, ऐसी उनकी ज़िंदगियां रह गई। एक जो तीसरी है वो बड़ी रेयर स्पीसीज़ है। वो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने मसीह के बारे में उन्होंने ये निर्णय लिया या नहीं लिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनके पैदा होने से, पैदाइश से पहले निर्णय ले लिया कि ये मेरी सेवा के लिए इस धरती पर पैदा होगा। वो कितनी परमेश्वर से आँख मिचोली खेलें, लेकिन पवित्र आत्मा उनको घेर करके अपनी सेवा ही में लाती है, जिसमें मैं अपने आप को गिनता हूँ। और याद रखें प्रभु यीशु के शब्द, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ, और ऐसा फल जो टिका रहे। और ये अगर इस कैटेगरी के लोग ये सोच लें कि वो जो फल लाना है उसका निर्णय मैंने लेना है, तो वो गलती पर हैं। ये क्या फल लाना है, किस सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, ये भी पवित्र आत्मा समझाती है, निर्देश देती है और उसके लिए अनुकूल वातावरण पैदा करती है। इसलिए आज जब हम अपना ये दिन शुरू करने जाते हैं और सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपनी जड़ों को पहले पक्का कर लें। आज अंदर जांच लें कि इन 3 कैटेगरी में मेरा स्थान कहाँ पर है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको शुभ दिन।